Good morning, student. We are learning here chapter number 13, surface area and the volume. In this lecture, we are going to discuss the topic volume of cylinder, and then we are going to solve exercise number 13.6. So यहाँ पे जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, we have already discussed earlier that the volume of cylinder, base area into height, which is equal to area of circular base into height, that is pi r square h. The volume of a cylinder is given by pi r square h. Now we know that the base of circular cylinder is one circle, and the area of a circle is pi r square. Now हम क्या करते हैं कि एक सर्कल पर दूसरा सर्कल रखते जाएंगे तो h हाइट के इतने सर्कल है हम उस पर रखेंगे, तो उस हिसाब से पाई आर स्क्वायर जो है एरिया वो कितनी टाइम तो कि h टाइम है उसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें तो ये सर्कुलर सिलेंडर है उसका हमें जो है एरिया मिल जाएगा. मीन्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. नाउ लेट सम एग्जाम्पल. Example number 13. The pillars of a temple are cylindrically shaped. If each pillar has a circular base of radius 20 centimeter and height 10 meter, how much concrete mixture would be required to build 14 such pillars? Now we want to construct 14 pillars. So we have to find the volume of the cylindrical pillar. So first we find the one volume of one pillar, and then we multiply it with 14. That after then we get the volume of 14 pillar, and it is equal to the concrete mixture that will be required to build the 14 pillars. So as we given here figure that given that the radius of this one pillar is a cylindrical shape. So यहाँ पे जो पिलर है वो सिलिंड्रिकल शेप में है, तो उसका जो वॉल्यूम है हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें रख के उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं. सो सॉल्यूशन, since the concrete mixture that is to be used to build up the pillars is going to occupy the entire space of the pillar, what we need to find here, it is the volume of cylinders. So the radius of base of a cylinder is equal to 20 centimeter as we given here. Height of the cylindrical pillar, that is 10 meter, which is equal to 1000 centimeter, because we are going to convert it in a centimeter. So volume of each pillar is equal to pi r square h. Always note that the parameters of each of the terms should be same. Here the parameter radius has a same unit centimeter, and also we have to that convert cylindrical pillar, the height of the cylindrical pillar into centimeter. So here 10 meter equal to 1000 meter. As we know that we multiply 100 into 10, that will be equal to 1000 centimeter. Now let me put this value in the volume of each cylinder, which is equal to pi r square h. Here not given the value of pi, so we have to take the value of pi 22 by 7. So after then we get 22 by 7 into 20. R square means 20 into 20 divided by 1000, and then at last we get the volume of one pillar. The volume of one pillar is equal to 8.8 by 7 meter cube. Now we have already know that 10 lakhs centimeter cube is equal to 1 meter cube. So we have converted this centimeter cube into by dividing 1 lakh, then we get 8.8 meter cube. This is the volume of one cylinder.
After multiplying this volume with 14 means is equal to the volume of 14 pillars. So that therefore the volume of 14 pillars, volume of each cylinder into 14, which is equal to 8.8 divided by 7 into 14 meter cube, that is equal to 17 into 6 meter cube. So 14 pillar would need 17.6 meter cube of concrete mixture. Now next example, example number 14. At a Ramzan Mela, a stall keeper in one of the food stall has a large cylindrical vessel of base radius 15 centimeter filled up to the height of 32 centimeter with orange juice. मीन्स एक जो रमज़ान का मेला है उसमें एक सिलिंड्रिकल एक वेसल है, एक पात्र है, उसमें क्या है कि 30 उसका जो रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर है और उसका जो हाइट है कि उसमें 32 सेंटीमीटर तक ऑरेंज जूस भरा हुआ है. द जूस इज फिल्ड इन स्मॉल सिलिंड्रिकल ग्लासेस ऑफ रेडियस 3. यहाँ पे जो ऐसा दिया गया है कि एक फिगर है, जो बड़ा वाला जो जूस का जो कंटेनर है उसमें से छोटे छोटे ग्लासों में क्या करते हैं तो कि ये जूस है फिलअप करते हैं ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. और जो छोटे ग्लास है उसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर और जो बड़े वाला है उसका 15 सेंटीमीटर अप टू द हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड सोल्ड फॉर ₹15 ईच. मीन्स एक ग्लास का कितना 15 रुपये में वो बेचा. हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कम्प्लीटली. मीन्स जो एक कंटेनर है, जो वेसल है, उसमें जितना जूस भरा है तो उस जूस में से ऐसे ग्लास भरे जाते हैं. तो हम क्या करेंगे, हमें पता लगाना है कि ये जो कंटेनर का वॉल्यूम है, कंटेनर का वॉल्यूम है उसमें से कितने ऐसे ग्लास भरे जा सकते हैं और उस ग्लास की संख्या मिलने के बाद उसे हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने रुपये का मुनाफा है वो किसे मिलेगा. तो यहाँ रमज़ान स्टॉल में जो है स्टॉल कीपर है उसको. तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि ये जो सिलिंड्रिकल शेप में जो जूस भरा हुआ है जिसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर एंड उसका जो रेडियस है 15 सेंटीमीटर, तो उसका पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे. फिर उसके वॉल्यूम को हम किसके वॉल्यूम तो कि एक ग्लास के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ ग्लासेस मिल जाएंगे और उसके बाद उसको क्या तो कि 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका आंसर हमें मिल जाएगा. तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जांपल, द वॉल्यूम ऑफ जूस इन द वेसल, वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू पाई कैपिटल R square h because here given the vessel is bigger than greater than glass. So we take the R capital R as the radius of that vessel and the h as the height of the vessel, where R and h are taken as the radius and height of respectively of the vessel. So pi into 15 into 50 32 सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया किसका वॉल्यूम तो के जो बड़ा वाला वेसल है उसमें जितना ऑयल जो जूस भरा है वो. नाउ वी वांट टू फाइंड द volume of glass. Similarly, the volume of each juice, each glass can hold pi r square h. यहाँ पे जो स्मॉल h है वो जो रेडियस और हाइट है किसकी तो के ग्लास की, स्मॉल ग्लास की. सो उसका वॉल्यूम कितना है क्या पाई 3 इंटू 3 इंटू 8 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी. क्यों नहीं रखी? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम जो वेसल है उसका जो वॉल्यूम है उसको हम अगर ग्लास के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखी. सो द नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ जूस दैट आर सोल्ड दैट इज वी डिवाइड जो बड़ा वाला मीन्स जो ज़्यादा वॉल्यूम होगा उसको हम कम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे. तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ ईच ग्लास, देन वी गेट 100. सो वी गेट द नंबर ऑफ ग्लास दैट इज 100. यहाँ पे एक ग्लास का कितने 15 रुपये, तो हमें ऐसे कितने उसने जो शॉपकीपर है उसने कितने तो कैसे 100 ग्लास है वो बेचे होंगे. तो therefore amount received by the stall keeper is equal to 15 into 100 that is rupees 1500. तो मीन्स उसको कितना मुनाफा हुआ 1500 in a day. So by this way we can solve such type of example. Now let me solve exercise number 13.6. Assume pi is equal to 22/7 unless the stated otherwise. मीन्स जो
पाई की वैल्यू नहीं दी गई होगी, तो हम पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 22/7। एग्जाम्पल नंबर 1, द circumference of the base of the cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? मीन्स यहाँ पे उसका जो वॉल्यूम है फाइंड करेंगे, वॉल्यूम को किस में, तो क्या फिर उसके बाद में उसको लीटर में कन्वर्ट हम कर देंगे। तो अब सेंटीमीटर को यहाँ पे एक बात है कि हमें यहाँ पे एक इस तरह का एक सिलिंड्रिकल बेस है, एक वेसल है इस तरह का सिलिंड्रिकल। यहाँ पे हमें उसका रेडियस नहीं दिया गया, लेकिन उसका जो सर्क्यूम्फरेंस है, उसका परिघ जो है, उसका यहाँ वैल्यू दिया गया है 132 सेंटीमीटर। हमें पता है कि सर्क्यूम्फरेंस, सर्कल का सर्क्यूम्फरेंस है, हमें सिलिंड्रिकल वेसल है उसका जो बेस होता है वो एक सर्कल होता है, तो उस हिसाब से उसका सर्क्यूम्फरेंस है। सर्क्यूम्फरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr। इसकी हाइट भी दी गई है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। तो अब उसका रेडियस हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो हमारे पास उसका जो एक वेसल का जो है उसकी जो सर्क्यूम्फरेंस है, बेस का जो सर्क्यूम्फरेंस है वो हमें 132 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है 2πr, उसमें से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, और r की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको किस में, तो कि हमारे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr² ऑफ दिस वेसल, उसमें रख के हम क्या कर लेंगे, तो कि वॉल्यूम उसका फाइंड करेगा, और जो वॉल्यूम मिल जाएगा तो उसे हम फिर लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे दिया गया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर क्यूब, उसमें हम कन्वर्ट कर देंगे। सो लेट वी फाइंड सॉल्यूशन। सो हियर गिवन दैट h इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 2πr कितना दिया गया है 132 सेंटीमीटर। तो नाउ वी फाइंड द r फ्रॉम दिस इक्वेशन, 2 into 20 2/7 into r विच इज इक्वल टू 132। अब r को हम, r की वैल्यू चाहिए तो r को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो r इज इक्वल टू 132, और यहाँ जो न्यूमरेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो बाद में यहाँ पे कितना रहेगा, बचेगा 22 6 है, 22 6 कितना हो जाएगा 132, और 2 3 6, और 3 into 7 दैट इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पे उसकी रेडियस कितनी हो 21 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस है, हाइट है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट इज इक्वल टू πr²h एज वी नो। नाउ लेट वी पुट द वैल्यू पाई 22/7, 21 into 21 दैट इज r², एंड 25 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा बाद में 22 into 3 into 21 into 25, उसका आंसर क्या आएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय, यहाँ पे हमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो अब क्या करने का, सेंटीमीटर क्यूब में से लीटर में आने के लिए हमें पता है कि अगर बड़े वाले जो बड़ा यूनिट होता है उसमें जो छोटे यूनिट में जाने के लिए उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन छोटे यूनिट में से बड़े यूनिट में जाने के लिए हम क्या करके डिवाइड करेंगे, तो 1000 से हम क्या कर देंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। तो 34,650 डिवाइडेड बाय 1000 liters which is equal to 34.65 liters, that is the required answer. Now next example number 2, the inner diameter of cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. Now here given that one pipe, wooden pipe, इस तरह का एक वुडन पाइप है। अब अगर वुडन पाइप है तो हमें पता है कि उसकी कुछ जाड़ाई होगी, थिकनेस होगी उसकी।
तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो वुडन पाइप होता है वो अंदर से होलो होता है, वो अंदर से एम्प्टी होता है। तो उसका जो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसकी जो थिकनेस है वो उसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें आउटर और इनर डायमीटर दिए गए हैं। जो इनर डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस R1, उसे R1 कह देते हैं। R1 कितना हो जाएगा, तो क्या 12 सेंटीमीटर। और आउटर डायमीटर वो 28 है, तो आउटर रेडियस R2 वो कितनी हो जाएगी, तो क्या 28 डायमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर। तो हम बात करें कि हमें इसकी थिकनेस फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, तो कि जो आउटर मीन्स जो यहाँ पे दो हमें पाइप मिलते हैं, इस तरह के दो पाइप मिलते हैं। तो ये जो है हमें फाइंड करना है। तो ये जो हो गया बड़ा सिलेंडर हो गया और इसमें छोटा वाला सिलेंडर हो गया। तो अब बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे वाले ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसमें से छोटा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम अगर हम बात कर दें तो ये जो थिकनेस है हमें मिल जाएगी। तो अब इस तरह से हम उसका फाइंड कर सकते हो। तो लेट अस फाइंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जांपल। हियर इनर रेडियस R इज इक्वल टू 24/2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस कैपिटल R 28/2। यहाँ पे R1 और R2 भी ले सकते हो और नहीं लेना तो इनर रेडियस को R और आउटर रेडियस को कैपिटल R कह देंगे। तो उसका रेडियस हो गया, हाइट भी दी गई 35 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द वुडन वुड यूज इन पाइप इज इक्वल टू पाई R² माइनस H² इंटू एच। अब ये कहाँ से आया, तो हमें पता है कि मैंने बोला था कि बड़े वाले वॉल्यूम में से पाई R² H में से हम जो छोटा पाइप है उसका वॉल्यूम निकाल देंगे पाई R² H। तब दोनों में से कॉमन क्या निकलता है, पाई पाई एंड H। तो बाकी क्या बचा, R² माइनस R²। तो यहाँ पे हमें मिल गया पाई इन ब्रैकेट R² माइनस स्मॉल R² इंटू H। वॉल्यूम सारी की सारी वैल्यू रख देते हैं। तो 22/7 14 यहाँ पे 2 आएगा, 14/2 यहाँ पे 2 आएगा, (4) नहीं आएगा। 14/2 12² इंटू 35 सेंटीमीटर क्यूब। तो बाद में हमें 22/7 और इसका आंसर क्या आएगा, तो कि 26 इंटू 2 और 35। तो उसका आंसर लास्ट में क्या आएगा, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो कितना, उसमें मास कितना है, तो 0.6 ग्राम है। तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इज 0.6 ग्राम। तो मास ऑफ 5720 centimeter cube will be equal to the multiplication of both the term, then we get 3432 gram, and which is equal to, if we convert this we have to divide by 1000, then we get this answer 3432 kilograms. Next example, example number 4. If the lateral surface of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find radius of its base and its volume. तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, सरफेस एरिया दिया गया है और उसकी हाइट दी गई है। तो पहले हम उसका रेडियस फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम उसका सरफेस एरिया दिया गया है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला रख के उसमें से हम हाइट उसका और हाइट का वैल्यू रख के उसमें से हम रेडियस निकाल लेंगे और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें या और पाई की वैल्यू यहाँ पे पाई इज इक्वल टू 3.14 दिया गया है। द वॉल्यूम ऑफ गिवन एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जाम्पल, हियर h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 2 पाई RH इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो उसमें से अब फॉर्मूला में से हमें r फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 पाई RH इज इक्वल टू 94.2, 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे जो दी गई है वो रखने की है। r ऐसे ही रखेंगे क्योंकि r की वैल्यू में पता नहीं, h क्या है तो क्या 5 है और 94.2।
अब आर को सब्जेक्ट बना ले तो हमें इस तरह का कुछ फॉर्मूला मिलेगा 94.2 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इज इक्वल टू 3। तो रेडियस कितना है उसका 3 सेंटीमीटर। अब रेडियस हमारे पास है, हाइट हमारे पास है, तो हम क्या आंसर मिला सकते हैं, तो कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू इन गिवन formula, then we get the volume of the given cylinder, that is 141.3 centimeter cube, which is the required answer. Example number 5. It cost of 2,200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting it is at rate of 20 rupees per meter square, find the inner curved surface area of the vessel, radius of the base, capacity of the vessel. अब क्या है कि सिलेंड्रिकल वेसल है, उसको पूरे का पूरा पेंट करने के लिए हमने 2200 रुपया खर्चा किया। कितने पर? तो कि 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपये। तो आपको हमें पता है कि यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है। क्या दिया गया है? कर्व्ड सरफेस। इस तरह का वेसल है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, उसको पेंट करने के लिए हमने कितना रुपया 2200 रुपया खर्चा किया। कितने में? तो कि 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपये। तो उसमें से हमने जितना एरिया कलर किया है वो मिल सकता है। तो कि 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ में 1 मीटर स्क्वायर हम रंग लगा सकते हैं। तो 2200 में कितने मीटर स्क्वायर, जो कि इसका सरफेस एरिया हमें यहाँ पे मिल जाएगा। फिर सरफेस एरिया मिलने के बाद हमारे पास उसकी हाइट है, डीप मानी के उसकी हाइट है, तो हाइट को उसको हम उसका फाइंड करके उसको उनमें से उसका रेडियस मिला लेंगे। और कैपेसिटी मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वो भी हम मिला लेंगे। सो लेट वी सॉल्व दिस एग्जांपल। सॉल्यूशन हियर h इज इक्वल टू 10 मीटर। सो फर्स्ट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो क्या होगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाय 20 मीटर क्यूब, एज आई सेड, विच इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर पर हमने पेंट लगाया है। और हमने ये जो है कर्व्ड सरफेस एरिया पर ये जो पेंट किया है, तो ये जो कि मिला में आंसर वो क्या होगा? इट इज़ अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सिलिंड्रिकल वेसल। तो हमारे पास उसका फॉर्मूला है, उसमें हम रख देंगे तो हमें आर मिल जाएगा। सो वी हैव 2 pi r h, which is the curved surface area of cylindrical vessel, is equal to 110। तो हमें r चाहिए, तो हम वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू 10 इज इक्वल टू 110। हमें r चाहिए, तो हमें r इज इक्वल टू 110 इंटू 7, 2 इंटू 22 इंटू 10, विच इज इक्वल टू 1.75 meter, which is the radius of given vessel. Now we want to find the capacity of the vessel, that is the volume of the vessel, can be given as capacity of the vessel is equal to pi r square h, which is equal to 22/7 into 1.75 into 1.75 into 10 meter cube, which is equal to 96.25 meter cube। और जो है हमें उसका यहाँ पे आंसर मिल गया मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब को हम 1 किलो लीटर भी कह सकते हैं, पता है ना किस तरह से? तो मीटर क्यूब कैसे कह सकते हैं? तो हमें पता है कि अगर इसे लीटर में कन्वर्ट करना है तो 96.25 इंटू 100 हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। देखिए 1000 को हम क्या कहते हैं? किलो कहते हैं। तो उस हिसाब से 96.25 100 को 1000 को क्या कह दिया? किलो कह दिया, और लीटर, तो 96.25 किलो लीटर उसका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। द कैपेसिटी ऑफ a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 150
15.4 liters, how many square meters of metal sheet would be needed to make it? यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल जो वेसल है उसकी हाइट दी गई है और उसका वॉल्यूम दिया गया है, तो हमें उसका जो है कितना उसमें स्टील मीन्स उसका जो सरफेस एरिया है वो फाइंड करना है, क्योंकि स्टील है वो जो उसका सरफेस एरिया जितना होगा उतना स्टील है वो यूज़ हुआ होगा जो यहाँ पे सिलिंड्रिकल वेसल है। ये सिलिंड्रिकल वेसल है, इसको बनाने के लिए क्या उसकी जो यहाँ पे जो सरफेस एरिया होता है उतना स्टील उसमें यूज़ होता है। तो यहाँ पे उसका सरफेस एरिया फाइंड कर ले तो हमें उसका जो है उस स्टील का वॉल्यूम भी हमें स्टील जितना एरिया है स्टील का एरिया हमें मिल जाएगा। तो पहले यहाँ पे उसकी हाइट दी गई है और उसका कैपेसिटी दिया गया है। कैपेसिटी मीन्स ये लीटर दिया गया, उसको हम पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे और बाद में उसमें से हम उसका रेडियस निकाल लेंगे तो रेडियस मिल जाएगा, तो हम उसका जो सरफेस एरिया है वो मिल जाएगा और सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू द स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट। So let solution of given example. Here H is equal to 1 मीटर, वॉल्यूम कितना दिए 15.4 लीटर्स। सो लीटर में से मीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस हिसाब से यहाँ पे 1000 से डिवाइड करने बाद उसका आंसर क्या आएगा 0.0154 मीटर क्यूब। अब तो क्या हमें उसका वॉल्यूम मिल गया है। ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वेसल इज पाई आर स्क्वायर एच। अब उसमें दोनों की वैल्यू रख देते हैं तो वॉल्यूम कितना है तो क्या 0.0154 और पाई आर स्क्वायर एच में वैल्यू रख दे 22/7 आर स्क्वायर इंटू 1, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.0049। तो ये उसका आंसर आ गया। तो इस हिसाब से उसका आर का वैल्यू क्या आएगा तो दैट इक्वल टू आर, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आएगा 0.07 मीटर। इसका आपको अगर स्क्वायर रूट निकालना है दोनों तरफ से तो इसका स्क्वायर रूट किस तरह से निकाल सके तो क्या 49, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको 1 कर देते हैं और पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है तो क्या 1 2 3 और 4 प्लेसेस है। अब 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 और यहाँ पे 10,000 का तो क्या 100 स्क्वायर, तो हो गया ना। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 7/100 आएगा और 7/100 कितना आएगा तो क्या 0.07 मीटर। तो रेडियस हमें मिल गई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वेसल है तो उसका एक नीचे का बेस और ऊपर एक ढक्कन भी होता है। तो उसका जो फॉर्मूला क्या है 2πr इंटू एच प्लस आर, तो उसमें रखने के बाद उसका आंसर क्या है 0.4708 मीटर स्क्वेयर। हैज़ द 0.4708 meter square of metal sheet would be needed to make this type of cylindrical vessel. So by this way we can solve the examples given in the exercise number 13.6. The example number 3, 7 and 8 are similar to this example. Now after then if you can find any doubt then you can say me and we can solve these examples.